रिलायंस इंडस्ट्री ने 46वीं एजीएम में पूरे ग्रुप में ग्रोथ का पूरा रोड मैप पेश किया गया। कंपनी ने नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ईशा, आकाश और अनंत को रिलायंस के बोर्ड में शामिल किया गया है। वहीं नीता अंबानी बोर्ड से हट गई हैं, लेकिन वो परमानेंट इनवाइटी के तौर पर बोर्ड में बनी रहेंगी। इसके अलावा चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स, रिटेल, जियो फाइनेंशियल और न्यू एनर्जी से जुड़े कई बड़ी बातें कही। जियो प्लेटफॉर्म गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इस साल के अंत तक पूरे देश में 5G सर्विस का विस्तार करने का इरादा जताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल के बीमा कारोबार में उतरने का भी ऐलान किया। साथ ही न्यू एनर्जी में 2035 तक नेट कार्बन जीरो होने का लक्ष्य एक बार फिर दोहराया है। इसके अलावा चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि नई टीम पूरी एनर्जी से भरी हुई है और अगले 5 साल तक वो चेयरमैन बने रहेंगे और नई टीम को मेंटोर करते रहेंगे। ईशा, आकाश and Anant, as first among equals of the next generation leaders, have fully immersed themselves in every aspect of Reliance. They have been working with our senior leaders in some of the most exciting projects in consumer businesses, digital enterprises, O2C, and green energy and green materials. I am happy to report to you that earlier today, the board met and recommended the induction of Isha Ambani, Akash Ambani, and Anant Ambani into the board of directors of Reliance Industries Limited. I can proudly say that they have earned their stripes through dedication, commitment, and hard work. Teaming up with the other directors, they will work as one single team to provide leadership to the Reliance Group as a whole and guide the growth of all our diverse businesses with a holistic vision. I shall continue to perform my duties and responsibilities as Chairman and Managing Director for 5 more years with greater vigor. Towards this end, I have assigned myself 3 responsibilities. First, I shall groom and empower all the next generation leaders at Reliance and prepare them for the challenges and opportunities of the future. Second, I shall especially mentor Akash, Isha, and Anant so that they can provide collective leadership and dependably take Reliance to greater heights of growth and value in the decades ahead. Third, together with the board and all my long-time colleagues, I shall further enrich Reliance's unique institutional culture, which has sustained your company's perpetual and exponential growth. आरआईएल के एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विश्वास जताया कि कंपनी अगले दशक में जोरदार वैल्यू क्रिएशन करेगी। उन्होंने कहा कि ये पिछले 45 सालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा। I am supremely confident that the value that your company will create for all its stakeholders over the next decade will be multiple times greater than what it has generated over the past 45 years. गणेश चतुर्थी पर देश को जियो एयर फाइबर का तोहफा मिलने वाला है। जियो एयर फाइबर एक क्रांतिकारी पोर्टेबल डिवाइस है जिसके जरिए ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड मिलेगी। आज आरआईएल के एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह ऐलान किया। Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September. जियो फाइनेंशियल अब बीमा सेक्टर में एंट्री करेगी। कंपनी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोडक्ट बाजार में लाएगी। आरआईएल की एजीएम में आज चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह ऐलान किया। JFS will enter the insurance segment to offer simple yet
smart life, general, and health insurance products through a seamless digital interface, potentially partnering with global players. It will use predictive data analytics to co-create contextual products with partners and cater to customer requirements in a truly unique way. और रिलायंस रिटेल को लेकर ईशा अंबानी ने एजीएम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Financial year 23 has been a landmark year for our retail business. Our immense faith and conviction in India's retail story was amply rewarded when Reliance Retail crossed the milestone of 100 crore transactions, up 42% year on year. Our stores received more than 78 crore footfalls during the year, and the number of registered customer base grew to nearly 25 crore. We're delivering value to over 30% of India's addressable population. All this has made Reliance Retail rank among the top 10 most visited retailers in the world. और आइए आपको सुनाते हैं कि एजीएम में आकाश अंबानी ने क्या कुछ कहा है। We're building a transformative platform that will change how Indian enterprises, small businesses, and technology startups interact with the digital world. Today, we're announcing the Jio True 5G Developer Platform, a comprehensive platform combining our 5G network, edge computing, and a spectrum of applications and services. It gives enterprises the control and options to activate network slices on demand, deploy application on Jio's multi-access edge compute locations, and access a diverse ecosystem of partner applications, all within a single platform. This fusion of 5G network, edge computing, and service orchestration is transformative for Indian businesses. We're also announcing the Jio True 5G Lab, a facility designed to accelerate industry transformation. रिलायंस के एजीएम में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने एक बार फिर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि जो काम महिलाएं नहीं कर सकती उसे कोई भी नहीं कर सकता। नीता अंबानी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत है। India will have the largest number of women in the world. Empowering them is no longer just a responsibility. It is a necessity for our country to reach the heights that we aspire and deserve to. At Reliance Foundation, we are committed to encouraging, enabling, and empowering women in every corner of our country. Because I firmly believe that what women cannot do cannot be done. Through our Women Lead India Fellowship with Vital Voices, we aim to support women social sector leaders all over India. और रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम को पूरे के निचोड़ को समझते हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी से। बताएं नीरज जी, नई पीढ़ी को कमान दे दी गई है, सक्सेशन प्लान को किस तरीके से देख रहे हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 46वीं एजीएम में कई बड़े ऐलान हुए। सबसे बड़ा ऐलान तो ये हुआ कि उनके बोर्ड में बदलाव किए गए हैं, जिसमें तीनों उनके जो बच्चे हैं, ईशा अंबानी, अनंत और आकाश, तीनों को बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही नीता अंबानी जी बोर्ड से हट जाएंगी, लेकिन रिलायंस फाउंडेशन की वो चेयरमैन रहेंगी और बोर्ड में परमानेंट इन्वाइटी के तौर पे काम करेंगी। इसके साथ ही मुकेश अंबानी जी अगले 5 साल तक चेयरमैन बने रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और उनके 3 टारगेट उन्होंने सेट किए हैं। पहला, वो पूरे मैनेजमेंट को वो ग्रूम करेंगे, दूसरा अपने तीनों बच्चों को वो मेंटर करेंगे, और चौथा, वो इंस्टीट्यूशन के तौर पे इस कंपनी को एक कल्चरली आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेके चलेंगे। तो ये थी सक्सेशन प्लान की बात, लेकिन नीरज जी, ओवरऑल एजीएम का विश्लेषण किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, रिलायंस की जो सबसे खास बातें इस एजीएम में निकल के आई कि इस बार रिलायंस अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सक्सेशन प्लान बिल्कुल उन्होंने क्लियर रख दिया है, तीनों बच्चे उनके बोर्ड में शामिल हो गए हैं, और इसके साथ ही उनका जो फोकस है वो न्यू बिजनेसेस पे है, चाहे वो फाइनेंस का बिजनेस हो, रिटेल का बिजनेस हो या जियो प्लेटफॉर्म्स हो,
और न्यू एनर्जी हो। तो एक तरीके से न्यू रिलायंस को आप देखेंगे और ये सारे बिजनेसेस का एक थ्रेड है जो इस समय की बहुत ज़रूरत है और सही समय पर उन्होंने देखा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सारे बिजनेसेस होंगे, चाहे वो फाइनेंस का बिजनेस हो जिसमें वो कह रहे हैं कि डिजिटल फर्स्ट, यानी उसका एप्लीकेशन डिजिटल के थ्रू होगा जिससे रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेम चीज़ वो न्यू एनर्जी और जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करना चाहते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स की स्कीम्स या योजनाएं बहुत बड़ी हैं, घर, दुकान, मकान, ऑफिस, सब जगह आपको हर तरीके की सर्विसेज जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेंगी और रिटेल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी न सिर्फ भारत के, दुनिया की बन चुकी है और उसके थ्रू उनको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे एक रीच बनेगी और जिसका फायदा इंटर ग्रुप में सबको मिलेगा, यानी जियो प्लेटफॉर्म और जियो फाइनेंस भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इसलिए ये तीनों जो चारों नए बिजनेसेस हैं, इसी पर रिलायंस का पूरा फोकस है। O2C जो कोर है इस समय 65% जहां से रेवेन्यूज आते हैं उस पर भी फोकस है, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है वो न्यू बिजनेसेस की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसकी बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या है फ्यूचर प्लान, आज आवाज अड्डा में इस पर बड़ी चर्चा देखिए शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन और रिलायंस एजीएम के दिन बाजार में हल्की बढ़त रही। इसी के साथ बाजार चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 64,997 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक चढ़कर 19,306 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, रियल्टी और पीएसयू बैंक में रही। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर दबाव में रहे। अब रक्षाबंधन को 2 दिन बचे हैं और बाजार में राखियां सज चुकी हैं। इस बार के राखी ट्रेंड्स पर मुंबई के दादर मार्केट से देखिए संवाददाता पीयूष परमार की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए मुंबई के बाजार सज चुके हैं। रंग बिरंगी राखियों से तमाम दुकानें सजी हुई हैं। बहनें आ रही हैं और अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए अच्छी सुंदर सुंदर राखियां यहाँ पर चूज कर रही हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर खूब सारी भीड़ है बहनों की और यहाँ पर आकर के वो राखियां चूज कर रही हैं। सस्ती और सुंदर राखियों के लिए दूर दूर से लोग मुंबई के दादर मार्केट आते हैं। मार्केट में रंग बिरंगी राखियों की सैकड़ों दुकानें सज चुकी हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई के हिसाब से यहाँ राखी के कई ऑप्शन देख सकती हैं। यहाँ धागे की राखियों की पूरी रेंज है, साथ ही चांदी और सोने की राखियां भी उपलब्ध हैं। सोने तो नहीं, लेकिन चांदी की राखियों की डिमांड हर साल की तरह इस साल भी तेज है। बाजार में छोटे छोटे भाइयों के लिए भी राखी उपलब्ध है, कार्टून्स वाले, चाहे मोटू पतलू की हो, सुपरमैन की हो, बैटमैन की हो, डोरेमोन नोबिता की हो और भी बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स की जो राखियां हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। इस साल सबसे ज्यादा मांग है पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स की। मेरा भाई है 3 साल का, तो उसके लिए मैं राखी ढूंढ रही हूँ। अभी यहाँ पे तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, बट उसको स्पाइडरमैन पसंद है तो मैंने ये चूज़ किया है उसके लिए। इस बार त्योहार पर महंगाई की चर्चा भी तेज है, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि राखी की मांग और बाजार में भीड़ दोनों किसी भी तरह से कम नहीं है। रौनक बहुत है, बहनें आ रही है, अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियाँ चूज कर रही है। मुझे स्पाइडरमैन वाली राखी पसंद है। रक्षाबंधन के त्योहार में सिर्फ राखी नहीं, कपड़े और भाई बहनों के गिफ्ट आइटम की भी अच्छी खासी मांग रहती है। दादर मार्केट इन सब के लिए भी एक अच्छा ठिकाना है। पीयूष परमार, मुंबई। और भारत के लाल नीरज चोपड़ा ने किया कमाल, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ये एक बार फिर से साबित हुआ बंगलुरु दिल्ली फ्लाइट में, जहां एक 1.5 साल की बच्ची की जान बचाई एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, वो भी सिर्फ अपनी सूझबूझ से। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट।
1.5 साल की इस मासूम बच्ची के लिए ये 5 डॉक्टर्स देवदूत साबित हुए। ये बच्चे जन्मजात होने वाला हृदय रोग सियानोटिक से पीड़ित है। 21 दिन पहले ही बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। विस्तारा की फ्लाइट से बंगलुरु से दिल्ली आ रही बच्ची की सांसें अचानक रुक गईं। इमरजेंसी मदद के लिए फ्लाइट में डिस्ट्रेस कॉल की गई तो इन डॉक्टर्स ने सीमित संसाधनों से बच्ची को ऑक्सीजन दी और दवाई के लिए कैनुला लगाया। फ्लाइट के चढ़ते ही आधे घंटे पे एक डिस्ट्रेस कॉल आता है, तो अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर कोई फ्लाइट पे कोई डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं तो कृपया रिस्पॉन्ड करें। तो ये देखते हुए हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया एंड वी आस्क्ड कि क्या सिचुएशन है। डॉक्टर्स ने पाया कि नब्ज नहीं चल रही थी, हाथ पैर ठंडे थे और बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। उसके होंठ और उंगलियां पीली हो गई थी। हजारों फीट की ऊंचाई पर बच्ची को 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन इन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। This is something that is a suggestion can be added in the curriculum. Otherwise, the staff handled it very well. And जहाँ पे हमने जो मदद मांगी, हमने प्लेन डाइवर्ट कराने बोला, उन्होंने इमीडिएट हाँ बताइए कहाँ पे कैसे करना है। They really helped us. But this is something that for the future can be helpful. बच्ची की हालत इतनी नाजुक थी कि कुछ मिनट की देरी जानलेवा बन जाती। फिलहाल बच्ची का नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। यहाँ उसकी मेडिकल कंडीशन स्थिर है। दीपाली नंदा, दिल्ली। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को खेलों में भी चांद पर पहुंचा दिया है। नीरज चोपड़ा ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। हंगरी के बुडापेस्ट में चैंपियनशिप मुकाबले में 88.17 मीटर थ्रो के साथ नीरज ने गोल्ड हासिल किया। अब नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले दुनिया के पहले एथलीट भी बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने साल 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं इतिहास रचने के बाद नीरज ने कहा कि गोल्ड जीतने की खुशी है, लेकिन उन्हें 90 मीटर की दूरी तक भाला नहीं फेंक पाने का मलाल भी है। सभी बोलते थे कि यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल। अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज्यादा जोर लगाएंगे। नीरज चोपड़ा की मां अपने बेटे के इस रिकॉर्ड पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी नीरज से गोल्ड की उम्मीद रहेगी। वहीं उनके पिता ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह कहना चाह रहे जी, बहुत खुशी की बात है सारे देश के लिए और बड़े गर्व की बात है। बच्चे ने इतना ऊंचा नाम, मैदान में जाओगे कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई न कोई तो जीत करेगा। का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश की जीत है, पूरे देश के लिए ही बहुत खुशियां मिली थी। बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज ने फिर एक बार देश को गर्व से भर दिया है। गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स, अंडर 20 टाइटल और टोक्यो ओलंपिक्स जीतने के बाद अब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 को सफलता मिलने के बाद अब इसरो सूर्य, शुक्र और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो अपना सन मिशन यानी आदित्य L1 लॉन्च कर सकता है। ये सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन होगा। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती पर पहुंचने, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत बहुत जल्द गगनयान का ट्रायल मिशन लॉन्च करने वाला है। ये लॉन्चिंग 1-1.5 महीने में होने की संभावना है। इस लॉन्चिंग में मानव रहित यान को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड भी शामिल हैं।
इसके अलावा इसरो मंगलयान 2 और शुक्र ग्रह पर भी जाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान की कामयाबी के बाद से चंद्रमा के बारे में लगातार जानकारियां मिल रही हैं। ताजा जानकारी चंद्रमा के तापमान को लेकर आई है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया है। ग्राफ के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जानकारी वैज्ञानिकों के लिए भी चौंकाने वाली है। इसरो वैज्ञानिक BHM दारुकेशा का कहना है कि हम सभी मानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से हमारी अपेक्षा से ज्यादा है। बता दें कि पेलोड में तापमान को मापने का एक यंत्र लगा है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक तापमान लेने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 45 जगहों पर किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं उनकी ज्वाइनिंग CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP, NCB के साथ दिल्ली पुलिस में होगी। आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।